वो कर रही थी ड्यूटी रात को यही मान कि सब अपने ही तो हैं कौन अनजान, पर उन्हीं अपनों में एक भेड़िया छुपा हुआ था बन के इंसान, जो ढूंढ रहा था मौका कई दिनों से हाथों में कंजर तान। जब वो कलसित रात अपने पूरे रौ में थी, वो भी थकान से चूर सोना चाह रही थी, पर सोचा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, कदम सहता ही बढ़ चले उस द्वार जहाँ बैठा था एक दरिंदा कर रहा था मौके का इंतजार। The body of a female doctor was recovered in the seminar room of RJ Kar Medical Hospital and College in Kolkata on early Friday morning. Later, a civic volunteer connected with Kolkata police, namely Sanjay Roy, was arrested in the case. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has issued a stern warning to Kolkata police and has indicated that the case will be handed over to CBI if Kolkata police is not able to make any progress till Sunday. The incident has ignited widespread outrage and protest across Kolkata and in parts of Delhi in hospitals like RML, AIMS, and Safdarjung. Right now, I am in RML hospital where I speak to these doctors to understand their demands. The protest is about the victim who was murdered in her own hospital. She was a PG second year who was studying in her seminar room, and it is absolutely heinous that she could not be safe in her own hospital, where, as we can totally sympathize with her, this is our second home, and nobody should feel unsafe in their own home. So, as a doctor and as a woman, of course, how does this incident make you feel? And does this raise a question of safety in your head? Obviously, I mean, before this I was definitely under the pretense, it was a pretense that, oh, I am safe, this is my hospital, I am safe here, nobody can misbehave with me here. But now, after this incident, I'm not so sure if this can happen in any other hospital, it can happen in this hospital as well. That's the whole thing, कि अगर वो कलकत्ता में हो सकता है तो वो दिल्ली में भी हो सकता है. तो अभी आपकी डिमांड्स क्या हैं इस इंसिडेंट? We want a CBI investigation. We do not want the local people involved in it. That's all. We want to know the truth. We want to know why, how, where, all the details. We want to unleash that whole thing, and the culprits should be punished. The real culprits. We do not want any sort of miss happening in the whole procedure. So we have got three basic demands. First of all, immediately the culprit and the perpetrators should be arrested and brought to justice. The compensation or remuneration to the family should be given. Secondly, something concrete, a timeline or a committee that gives a report. Winter session is about to come in the parliament, so something should be done in that session for Central Healthcare Protection Act. And thirdly, to improve the pathetic condition of duty areas. So the kind of support that we or anybody wants from this situation, I don't think we are getting it, be it from the government or just the general public. I don't think लोगों में इतना awareness भी है, लोगों को पता भी है. People are just considering it to be a very normal thing, and I don't know, मतलब I think they need more awareness, and the protests has to be done in a more impactful way maybe. And I think some strict actions need to be taken. अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पे काम करने आते हैं, पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, और अगर हमें हमारे वर्क प्लेस में सेफ्टी नहीं प्रोवाइड किया जाता तो मतलब क्या बोलूँ मैं इस सिचुएशन के बारे में. इट्स जस्ट सो डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. आई मीन, अगर इसे सेफ्टी एस्पेक्ट की बात करें, जी आप यहाँ पे काम करती हैं. जी. What is the situation like? Does it feel safe? आप यहाँ पे 24 hours के लिए कभी होते हैं, probably even more than that. Yeah. Does it make you feel safe? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँगी, अगर ऑल दीज थिंग्स ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता है कब चीज़ें एक्सकेलेट हो जाती है, कब आपके साथ किस सिचुएशन में चीज़ें वो हो जाती है. सो दैट डॉक्टर, वो भी अपने काम पे थी, वो नाइट ड्यूटी पे थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग. जब हम घर से निकलते हैं, हम ये सोच के नहीं निकलते कि आज मेरे साथ ऐसा होगा कुछ. यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, ओके. एंड इट जस्ट हैपेंड, एंड इट इज़ वेरी सैड, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज एंड द अथॉरिटीज़ कि वो एक बेसिक सेफ्टी प्रोवाइड करे, कि अगर आप किसी को ड्यूटी पे रख रहे हो तो आपको वैसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो सेफली रह के अपना काम कर सके. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो डिमांड है, बट ये भी नहीं है सैडली.
this is also not available to the doctors. So अगर hospitals की specifically बात करें, what changes are you demanding right now? We need security. We need that kind of safety that कि अगर मतलब it's not just for the women, even for the guys also, you know, वो भी काम करते हैं. एक वार्ड से दूसरे वार्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, जहाँ पे रात कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे लोग हैं. अब कितनी बार होता है पेशेंट सिक हो जाता है, वार्ड से कॉल आता है, हम तो उसी टाइम पे फ़ोन भी नहीं उठाते, कुछ भी नहीं उठाए, बस एप्रन लिया और चले जाते हैं वहाँ पे. लेकिन वो जो बीच का जो स्पेस है वहाँ पे कोई भी नहीं होता है. और कितनी बार होता है लोग पीछे से पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, हम तो किसी को नहीं जानते, और अगर वो कुछ करके चले जाएं तो भी किसी को पता नहीं लगेगा. वो पीछे से टीजिंग कर रहे होते हैं, पीछे से नाम ले रहे हैं, कुछ भी बुला रहे हैं, गाने गा रहे हैं. हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनकी निष्पक्ष रूप से जांच होकर उनको पकड़ा जाए और उनको ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा ये ना हो. क्योंकि ये निर्भया पार्ट 2 है, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है कि आप वर्क प्लेस पे, अपने हॉस्पिटल में, अपने ड्यूटी डॉक्टर रूम में सेफ़ नहीं है. तो अगर एक डॉक्टर सेफ़ नहीं है तो पेशेंट्स भी सेफ़ नहीं हो सकते हैं. तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी को साथ में आना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए. ये लड़ाई एक डॉक्टर की और पेशेंट की या फिर एक डॉक्टर और सरकार की नहीं है. ये लड़ाई एक महिला सेफ्टी की लड़ाई है, एक सिटीजन्स की राइट की लड़ाई है, एक वर्क प्लेस पे सेफ्टी की लड़ाई है. ये जो ये सिचुएशन हुई है, इसकी वजह से आपकी एज अ फीमेल डॉक्टर एंग्जाइटी किस तरह बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो इंसिडेंट्स हुआ उसके अगले ही दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी और यूजुअली मैं जिस डॉक्टर ड्यूटी रूम में रेस्ट करती थी, मुझे वहाँ पे रेस्ट करने में डर लग रहा था. तो मैं एक ऐसी जगह पे, वहाँ स्टेशन थी उस समय जहाँ पे और भी फीमेल्स नर्सेज हों, ताकि मुझे अकेले डर ना लगे. इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, उसका तो ब्रेकडाउन भी हो गया. शी कुड नॉट स्लीप फॉर 3 nights एट अ स्ट्रेच बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट्स. क्योंकि आप जब रोड पे चलते हैं तब भी आप डरे हुए हैं. एज अ फीमेल अगर आप रोड पे सेफ नहीं हैं, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे, हॉस्पिटल इज़ अ सेकेंड होम फॉर एनी डॉक्टर. सो अगर आप अपने घर में भी सेफ नहीं है, आपको घर में डर लगे कि मेरा कोई रेप कर देगा, मुझे कोई आके मार देगा, तो हम कैसे काम कर सकते हैं? As protests continue across hospitals in Delhi and Kolkata, doctors demand CBI inquiry in the case, actions against the culprit, and protective measures in the hospital. This is Anaira Baksh with video journalist Danishmand Khan for The Print.